Welcome ninth class in today's class. So good morning all of you. Yesterday we started our new chapter, The Adventures of Toto, and today we will continue it where we left yesterday. Okay, so as I told you, this is the chapter story. There is a story in this chapter, and the writer Ruskin Bond, who used to write has lovely stories for children. Especially animals are main characters in this story, and the grandfather who is fond of having the different kinds of animals and birds as a pet in his house. So in this sequence, now he brought a monkey as a pet in his house, and because his wife did not like this habit of keeping animals as a pet in his house, so this news of a new member adding in their house, the Toto or a monkey, this news was kept secret from a grandmother. So one day when he was because the monkey was not feeling comfortable or let them live comfortably the others animal when he was kept with other animals in the house. So that's why when a grandfather has to go for his pension to Saharanpur from their city Dehradun, so he decided that he will take this Toto, who is a very mischievous kind of animal, with himself in the Saharanpur, and he was going by train. So what he did, he put the monkey in a canvas bag so that he can irritate to other or can create a problem in the train. So he was kept inside a canvas bag so that he can not tear the canvas, that is very hard stuff, and he was bundled in that. But what the monkey started to do, he started to roll on the station, and he was jumping because he was tied in a bag. So he was not sitting peacefully in that. He was jumping and always rolling on the road also. So that's why the grandfather, who is going to Saharanpur for taking his pension, when he reached on the station, the poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's announce. तो क्या हुआ कि जब वहाँ पर उनका टिकट चेकर जो है वो टिकट के लिए आया, जो टीटी होता है वो देखने के लिए कि टोटो रिमेन द बैग एज फार एज सहारनपुर, कि जब तक सहारनपुर ना पहुँचे वो बैग के अंदर ही रखा गया ट्रेन में. और उसको जो है बट वॉज ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly popped his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जब वो अपना टिकट जो टीटी उसमें चेक करने आता है उसको दिखा देते, तो सडनली टोटो ने क्या किया, उसने कैनवस बैग से अपनी गर्दन बाहर निकाली और उसकी जो है चिढ़ाने लगा, इसको टीटी को घूरने लगा. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of grandfather's announce. The poor man, वो बेचारा थोड़ा सा पीछे को हट गया और उसने लेकिन जो है उसे ग्रैंडफादर के ऊपर गुस्सा आ गया. ही सैड सर यू हैव अ डॉग विथ यू. आपने, क्योंकि कोई ये तो सोच ही नहीं सकता कि कोई मॉन्की को भी एज ए पेट रखता होगा. तो ही आस्क्ड ग्रैंडफादर, सर डू यू हैव ए डॉग, आपके साथ डॉग भी जा रहा है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. इसका भी आपको टिकट लेना पड़ेगा कि अगर आप जो है डॉग को अपने साथ लेके जा रहे हो तो एक टिकट आपने अपना लिया, तो ट्रेन में ले जाने के लिए आपको इसका भी. आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भारी सामान ज़्यादा होता है तो उसके भी टिकट से अगर हमसे पैसे ले लेता है, या कई बार ट्रेन में हम अंदर रख लेते हैं या बस में, है ना, तो या कोई पैट लेके जाएंगे तो उसके पैसे ले लेगा. तो उसने भी उससे कहा कि आपको इसका टिकट लेना पड़ेगा.
In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब ग्रैंडफादर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यूजलेस था मेरे लिए कि मैं उसको जो है किसमें कैनवस बैग में उसको बंद किया मैंने उसको, और उसको जो है मैंने इनवेन का मतलब यूजलेस, ठीक है, इनवेन बोलते हैं हम यूजलेस को, INVAN। यदि ऐसे लिखा होगा दैट मीन्स यूजलेस, है ना। तो इनवेन से क्या करें कि उसको उन्होंने बैग में रखा तो वो क्या था, बिल्कुल यूजलेस था, कोई फायदा नहीं हुआ उसको छुपाने का। और ही ट्राई टू मोंकी डिड नॉट क्वालिफाई, उसने कहा भी कि भाई ये डोंकी जो डॉग है या मोंकी जो है वो डॉग की तरह नहीं होता है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट टोटो वॉज क्लासिफाइड, लेकिन कितना भी उन्होंने कहा उसको तो उसने क्या मान लिया कि डॉग मान लिया, कि जैसे कोई डॉग पेट रखता है और इसलिए आपको इसका किराया लेना पड़ेगा, फेयर मतलब किराया। और इस तरह से उन्होंने उसको उसके किराए के रूप में कितने पैसे दिए, 3 रुपीज। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket or pet tortoise and said, "What must I have pay for this since you charge for all animals?" तो ग्रैंडफादर ने कहा, अपनी जेब में से जो उन्होंने एक टॉर्टॉइज था उनकी जेब में कछुआ, वो भी निकाल लिया और कहने लगे कछुए के कितने पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि तुमने कहा कि कोई भी तुम पेट एनिमल कोई भी अगर लेके जाएगा तो तुम्हें उसका किराया देना पड़ेगा, बताओ इसके कितने, टॉर्टॉइज के भी लोगे पैसे। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." उसने टॉर्टॉइज के पास गया, उसको ऐसे हाथ लगा के देखा और फिर ग्रैंडफादर की तरफ उसने कहा कि नहीं, इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये डॉग नहीं है, हम सिर्फ डॉग्स के पैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा इट इज नो चार्ज, इसका कोई किराया नहीं देना होगा, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट ए डॉग। When Toto was finally accepted by grandmother, he has given a comfortable home in the stable. अब घर में ग्रैंडमदर को पता चल चुका था कि न्यू मेंबर आ चुका है, तो जब वो धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हुई, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एक और पेट एनिमल घर में है, तो उसके बाद उसको जो है मोंकी को कहाँ पे रख दिया गया, स्टेबल। स्टेबल किसको बोलते हैं, जहाँ घोड़े बांधते हैं, अस्तबल को। Where he had for a companion the family donkey. अब वहाँ पे उनके घर में जो था उसका साथी, उनके घर में घोड़ा नहीं था, कौन था, डोंकी था, ठीक है। तो उसका कंपेनियन, टोटो का कंपेनियन वहाँ स्टेबल में कौन था, डोंकी, नाना, उसका नाम नाना था। नो ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट एट द स्टेबल, अब पहली रात जब उसकी स्टेबल में गुजरी, किसकी, टोटो की, नाना के साथ, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर चौथी रात में बार बार उसको देखने जाते थे कि वो ठीक ठाक भी है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या वो कोई परेशानी तो नहीं क्रिएट कर रहा, उसको देखने के लिए जाते। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। उन्होंने क्या नोटिस किया कि ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज, अपरेंट का मतलब है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कारण नहीं था, अपरेंट का मतलब जो दिखाई दे रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो क्या कर रहा था, नाना कौन, वो डोंकी, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज, हॉल्टर का मतलब जहाँ पर उसको बांध रखा था, कि वहां से बार बार वो उसको खींच रहा था और अपने सिर को उससे उतना जितना हो सकता था उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, किससे, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, जो उसके लिए खाने के लिए भूसा रखा गया था, हे बोलते हैं भूसे को, तो जो भूसा उसके लिए रखा था अपने सिर को उससे बार बार दूर कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस किसको बोलते हैं, जो उसकी पीठ होती है ना पीछे, उसको ऐसे उठे हुए, तो उन्हें उसके ऊपर क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और शी जर्क बैक, वो फिर से जो है क्या करा,
और से ज़्यादा खींचने लगी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, उसको जो है टोटो को अपने साथ लेके। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। क्या कर दिया था उसने? ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसने जो उसके लंबे कान थे किसके? नाना यानी डोंकी के, उसको उसने अपने दांत से जो है क्या कर दिया था? ईयर्स उसको बांध दिया था। टोटो एंड नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस तरह से यानी वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सके, दोनों एक दूसरे से इरिटेट होते थे, दोनों एक दूसरे को इरिटेट करते थे। यानी नाना जो है, डोंकी जो है, वो मोंकी के साथ रहना बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता था। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. A great treat for Toto. अब सर्दियों में उसको काफ़ी जो है अच्छे से ट्रीट किया जाता था। यानी ग्रैंड मदर क्या करती थी? एक बड़े से बॉल में उसके लिए गर्म पानी लेके आती थी। काहे के लिए लेके आती थी? वो नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand. पहले वो उसमें हाथ डाल के टेम्परेचर देखता था अपना, वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर उसमें धीरे धीरे अपने उस यानी टब में अपने पैर जो है वो उतार के नहाने के लिए बैठ जाता था। फर्स्ट ऑन फूट देन द अदर, पहले एक पैर डालता था फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, बिल्कुल, क्योंकि मोंकी क्या करते हैं? कॉपी करते हैं कि जैसे वो मेरे को देखता था कि पहले मैं एक पैर रखता था टब में नहाने के लिए फिर दूसरा, तो उसी तरह से वो भी पहले एक पैर रखता था और फिर दूसरा रखता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक वो पानी उसमें बैठ जाता था, वो जब तक वो पानी उसकी नेक तक नहीं आ जाता था। वंस कंफर्टेबल, यानी वो और उसमें बैठ के कंफर्टेबल फील ना करने लगे। ही वुड टेक द सोप ऑन हिज हैंड और फीट, फिर वो सोप लगाता था अपने हाथों पे पैरों पे, जैसे हम लगाते हैं ना फॉर बाथिंग टाइम, एज लाइक, एंड रब हिमसेल्फ, उसको सारे में रब भी करता था जैसे हम करते हैं। When the water became cold, फिर जब वो पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could do the kitchen fire indoor to dry himself. यानी सर्दियाँ थी क्योंकि तो ठंडा लगता था पानी में नहाने के बाद, तो जैसे ही वो देखता था गर्म रहता था पानी, तब तक तो उसमें बैठा रहता था, नहाता रहता था। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में सर्दियों के मौसम में पानी अगर आपने गर्म नहाने के लिए रखा है बकेट में या टब में, तो थोड़ी देर बाद अगर वो अपने आप ठंडा हो जाएगा ना, जैसे हमारे जो रूम टेम्परेचर उसके ऊपर आएगा, तो जब वो ठंडा हो जाता था तो वो इतनी तेजी से भागता था, कहाँ की तरफ भागता था? रन एज क्विकली एज ही कुड डू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, क्या करने के लिए? कि किचन में जो आग जल रही होती थी चूल्हे की या मीठे की, उसके पास जाके वो अपने आप को गर्म करने के लिए, कि आग के पास बैठने से गर्मी लगती है ना, तो अब जो ठंडा लगता था वो इसलिए अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एकदम किचन में भाग के बैठ जाता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और अगर इस दौरान कोई उसके साथ हंसी, उसके ऊपर हंस दे, यानी देखो कैसे कैसे कर रहा है, कैसे ठंड भाग रहा है वहां से किचन में गर्म होने के लिए, तो अगर इस दौरान किसी ने हंस दिया उसको देख कर, तो वो क्या करता था? फिर नहाने जाने के लिए परेशान करता था, नहाने नहीं जाता था, हर्ट फील करता था अपने आप को। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो क्या हुआ कि टोटो ने लगभग अपने आप को उबाल ही लिया था। बॉयल पानी या दूध जो भी हम गर्म बॉयल करते हैं उससे मतलब है कि ऐसे ही उसने भी अपने आप को एक दिन बॉयल कर ही लिया था, लगभग जीवित के रूप में। तो ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक दिन क्या हुआ कि अंगीठी के ऊपर क्या रखी हुई थी? एक पहले जो केटल होती थी उनमें बनती थी चाय या पानी गर्म करते थे, उसके हैंडल से उठा के उसमें पोर करने में इजी रहता था वाटर को या टी को, तो उसमें भी किचन में जो है अंगीठी के ऊपर एक केटल में गर्म पानी बॉयल हो रहा था, चाय बनाने के लिए रखी हुई थी। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने सोचा कि मैं अपने आप को जो है मतलब गर्म करने के लिए, उसे और तो कुछ मिला नहीं, तो उसने क्या किया? उसका ढक्कन उतार दिया, जो केटल के ऊपर ढक्कन लगा था लिड, वो उतार दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, उसने सोचा कि पानी जो है नहाने के लिए काफ़ी गर्म है, ये जैसे उसको हमेशा गर्म पानी में डालते थे, तो सोचा मेरे नहाने के लिए ये पानी सही है, और उसमें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कि गर्म पानी में बैठ जाता हूँ, और उसने अपने आप को उसमें he got in with his head sticking out from the open kettle, उसने जो है उसमें अपने आप को डाल दिया
जो बॉयल हो रहा था पानी केटल में अंगीठी के ऊपर, उसमें। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ देर तो उसे ठीक लगा, अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जैसे ही लेकिन पानी बॉयल होने लगा उसके अंदर बैठ गया। जब तक ज़्यादा गर्म नहीं होगा ना तब तक उसमें देखा होगा चेक करके, तो उसमें गर्म पानी नहीं है, मैं जैसे मैं गर्म पानी मेरे को हिलाते हैं ऐसे इतना ही गर्म पानी है, उसके अंदर बैठ गया। अब लेकिन क्योंकि वो तो अंगीठी के ऊपर रखा हुआ था, तो वो पानी जब बॉयल होने लगा, कोल्ड बिगन टू बॉयल, टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside sat down again। उसमें से निकलने के लिए बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते उसे ठंड लगी क्योंकि ठंडा मौसम था बहुत, तो उसे ठंड लगा, फिर उसके अंदर दोबारा बैठ गया वहीं पर, निकला ही नहीं बाहर। He continued hopping up and down for some time। उसने सोचा कि थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ मैं, until grandmother arrived and hauled him। इतने में ग्रैंड मदर किचन में आ गई और वो देख के उसे चिल्लाई, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जो आधा उबल चुका था यानी मोंकी, वो उसको किचन से बाहर निकाला, आउट ऑफ द केटल। इफ देयर इज ए पार्ट of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर आप ये कहा जाए कि जो दिमाग है वो शैतानियों में जो है क्या हो जाता है कि शैतानी करने के लिए हमारा दिमाग जो है जब परिपक्व हो जाता है तो हम शैतानी करते हैं, तो टोटो के अंदर जो है वो शैतानी करने वाला जो दिमाग था वो सबसे ज़्यादा काम करता था उसका। He was always tearing things to pieces। आपने देखा होगा मॉन्कीज क्या करते हैं कि चाहे कोई सब्जी लग रही होगी, चाहे वो उनसे खाई ना जाए, करेले अगर लग रहे होंगे छत पे हमारे यहाँ, तो वो क्या करते हैं उसको तोड़ेंगे, पीस पीस करके डाल देंगे। कोई भी चीज़ मिलेगी चाहे वो खाने के लायक ना हो उनके, लेकिन क्या करते हैं उसको पीस पीस करके डाल देते हैं। ऐसे ही कागज, कपड़ा, कुछ भी मिल जाए। तो इसी तरह से द सेम वे टोटो यूज टू टीयर इनटू पीसेस ऑल द पेजेस ही फाइंड। जो भी उसको पेज मिलते थे उन सबको वो पीसेस में कन्वर्ट कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। एक बार जब एक आंटी हमारे घर आई थी तो उसने क्या किया, उनके पास गया और उनकी जो ड्रेस थी उसमें पीछे एक होल कर दिया। जो उन्हें कपड़े पहने हुए थे, गाउन या फ्रॉक या जो भी पहना होगा स्कर्ट, उसमें पीछे एक होल कर दिया। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। अब एक दिन कह रहे हमारे घर में पुलाव बना था। पुलाव जिसे बनता है सबको जो है बहुत खाने के लिए जो है बहुत मन करता है, तो डाइनिंग टेबल पे खाते थे, तो डाइनिंग टेबल पे वो पुलाव रख दिया गया। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। जब हम वहाँ पहुँचे वो जो है चावल उसमें से निकाल रहा था। My grandmother screamed। अब ये देखते ही मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई। Then Toto threw a plate at her। और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, देखा है ना उसको, कि अगर खाने से उसको रोकोगे तो वो दूसरे के खाने के लिए भी नहीं छोड़ता। और उसने क्या किया, वो जो प्लेट थी चावल की, पुलाव की जो उस पर थी, वो मेरी ग्रैंडमदर की तरफ देखकर मार दी, उसको फेंक कर मारी उनकी तरफ। One of my aunts rushed forward। एक मेरी आंटी आगे आई and received a glass of water in the face। उसके तरफ उन्होंने क्या फेंक के मारा टोटो ने वहाँ टेबल से, एक गिलास फेंक के मारा। When grandfather arrived, Toto picked up the dishes of pulao and made his exit through a window। जैसे जैसे ही वहाँ पर ग्रैंडफादर आए, जहाँ पर खाना रखा हुआ था वो पुलाव, तो उनके आते ही वो क्या करने लगा, अब उनके ऊपर कुछ फेंक के नहीं मारा उसने, rather he took the pulao plate and went outside। और बाहर चला गया, उसने किसी को खाने नहीं दिए। Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches। और बाहर जाके वहाँ बैठ गया। क्या देखा हमने, branches of the jackfruit। जैकफ्रूट बोलते हैं कटहल, कि बाहर जो कटहल का पेड़ लगा हुआ था उसकी टहनियों पर जाकर बैठ गया। The dish is still in his hand। अभी भी वो पुलाव की प्लेट उसके हाथ में थी, वो नहीं गिरी थी। He remained there all afternoon। पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहा, वो प्लेट लिए हुए, eating slowly through the rice। धीरे धीरे वो चावल जो पुलाव थे वो खाता रहा। Determined on finishing every grain। वो मतलब पूरी तरह से तय कर रखा था कि एक एक दाना जो है वो उसमें से खत्म कर देगा, और उसने डिश में, वहाँ पर यहाँ डिश मतलब प्लेट, उसमें एक भी दाना नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया। And then in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree। क्योंकि ग्रैंडमदर उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो इसलिए उन्हें जो है उसने वहीं से वो प्लेट जो है उनकी तरफ फेंक के मार दी नीचे की तरफ वहाँ पर। Who had screamed at him, क्योंकि उसके ऊपर चिल्लाई थी, डांटा था उसको। He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces।
यानी उसने प्लेट जो थी उसकी सेरेमिक की होगी या कांच की होगी, तो उसने क्या किया, क्योंकि ग्रैंड मदर चिल्लाई थी तो उसने वो प्लेट जो है खाने के बाद फेंक के मार दी, और जब वो टूट गई पीस में तो उसे देख के खुश हो गया कि देखो तुमने क्योंकि मेरे पर चिल्लाई थी इसलिए मैंने प्लेट तोड़ दी। जब वो प्लेट 100 पीसेस में कन्वर्ट हो गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और अब तक हम सबको यानी ग्रैंडफादर को मेरे को समझ में आ गया था कि टोटो यानी मोंकी इज नॉट ए काइंड ऑफ पेट विच कैन बी कैप्ट इन हाउसेस, जिसको आप घर में रख सकें एज ए पेट, क्योंकि वो इतना मिस्टीरियस होता है कि वो घर में आपको जो है बहुत नुकसान करता है। डॉग नुकसान नहीं करता है कभी भी, उसको तो आप रोटी दोगे तो ही वो खाएगा, ठीक। तो वो जो है समझ में आ चुका था। सो इवन ग्रैंडफादर रियलाइज इट, ग्रैंडफादर को भी ये बात समझ में आ चुकी थी। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कॉटन एंड वॉलपेपर, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि इतना सारा नुकसान वहन कर सकें। कभी वो वॉलपेपर फाड़ देता था, कभी कपड़े फाड़ देता था, कभी बुक्स फाड़ देता था, कभी प्लेट्स, ग्लास ये सब तोड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, यानी इसलिए ग्रैंडफादर ने वही टोंगे वाला फ्रॉम होम ही हैज़ परचेज दिस टोटो गिव ए पेइंग 3 रुपीज़, अगेन उसको ढूंढा उन्होंने और फिर उसको जो है उन्होंने क्या किया, उसको 3 रुपीज़ दिए और उसको वापस किया। यानी फॉर अब जो 5 रुपये में खरीदा था ना उस टाइम उन्होंने, अब उसे जो है टोंगा वाले ने 5 रुपये वापस नहीं किए, सिर्फ कितने दिए, 3 रुपये। यानी घाटे का सौदा साबित हुआ, घर में नुकसान हुआ, और उसके बाद 5 रुपये का खरीदा था, लेकिन अब वो टोंगे वाले ने दोबारा से कितने में उससे वापस लिया, ओनली इन 3 रुपीज़। तो खैर उन्होंने ये सोच के कि थैंक गॉड इस परेशानी से वी गॉट राइट, हमें छुटकारा मिल गया, और वो 3 रुपये में ही उसको बेच के आ गए। तो यानी here the writer wants to entertain you through this story because all the children love the animals stories. So this is also a very good story of Ruskin Bond. I hope you would have also enjoyed this. So now write down the questions, word meanings, and go through again and again to understand it better. Because self-study is the better way to understand. दूसरे टीचर्स ने पढ़ा दिया, लेकिन जब तक until and unless you will not go through this chapter yourself, अपने आप से उसको नहीं पढ़ेंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ से या अपनी डिक्शनरी से लेके नोटबुक में नहीं लिखेंगे, सो आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस नहीं होगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय।